ویلکم بیک۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا، دنیا جانتی ہے بھارت پاکستان پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ دورے کے دوران جنوبی ایشیا کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر بات ہوگی۔ کا بلیم گیم میں وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے، تمام دنیا کو پتا ہے کہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے وہ ہم نے ثابت کیا دنیا کو، وہ تمام الزامات غلط تھے، ان کو پتا ہے، چین کو بھی، سب دنیا کو پتا ہے۔ میری بات پچھلے 3 ہفتے میں 2 دفعہ چینی وزیر خارجہ صاحب سے ہوئی، لوکل بھی ہوگا، ریجنل بھی ہوگا، ملٹی لیٹرل بھی ہوگا، گلوبل ایشوز بھی ہوں گی، اور جو کرنٹ جو ہمارا ہوا ہے ایک ایپیسوڈ، تو ہر چیز پہ بات ہوگی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اسحاق ڈار کا دورہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت پاکستان دونوں ملکوں کے تعلقات کو انتہائی اہم سمجھتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر بیجنگ اپنا موقف کئی بار واضح کر چکا، چین کی خواہش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت جاری رہے، علاقائی امن، استحکام، جامع اور دیرپا امن کے لیے بیجنگ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب۔ چین نے مہمن ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا چین پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر رہا ہے۔ ڈیم پر کنکریٹ بھرنا شروع کر دیا گیا ہے جو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین خیبر پختونخوا میں محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ اس منصوبے کو اگلے سال مکمل ہونا ہے۔ پاکستان بھارت تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا، بھارت خود کو امریکہ یا اسرائیل نہ سمجھے، پاکستان افغانستان یا فلسطین نہیں، بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا پاکستانی امن پسند قوم ہیں لیکن بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ Pakistan in this region is I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. They are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of United Nations resolution. They are trying to internalize it by oppression. They are trying to internalize it by changing its demography. So that's, my friend, is the problem. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. This overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region beyond. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as far as for the world peace. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر خارجہ جے شنکر کے خلاف پھر بیان دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا جے شنکر کی خاموشی صرف معنی خیز نہیں بلکہ مجرمانہ اور قابل مذمت ہے۔ پھر سوال کر رہا ہوں، بتائیں کیا بھارت نے اپنے طیارے اس وجہ سے گوائے کہ پاکستان کو حملوں کا پیشگی علم تھا؟ یہ محض کوتاہی نہیں بلکہ سنگین جرم تھا۔ قوم سچ جاننا چاہتی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر گئے، اہل خانہ سے ملاقات کی، تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خانہ کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے ایئر چیف نے شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وطن کے جانثاروں کو سلام۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے ایئر چیف نے آپریشنل ایئر بیس پر حملے کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے شہید افسر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، اہل خانہ کو یقین دلایا شہداء کی خدمات اور قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقاتیں کی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। कौमी मसले पर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को साइड लाइन कर दिया गया। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा हम पीटीआई अरकान को अपने खर्चे पर बैरून मुल्क भेजेंगे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। हुकूमत कहीं हमारे अरकान के नाम इस जेल में ना डाल दे। पानी पीटीआई पाकिस्तान का सबसे अहम हथियार है, खुदारा उसे इस्तेमाल करें। हुकूमत ने कुछ कमेटीज बनाई जिसका मकसद था कि मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान के मौकफ को अक़वाम आलम में फैलाना। उसमें पीटीआई का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स दुनिया में जाके वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें उसमें नहीं डाला, क्योंकि असली और खोटे इकट्ठे कर दिए जाए तो जो असली है वो भी अपना असली फंड खो देते हैं। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के वक्त अपने खर्चे पे भेजेंगे, पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, फिर ये ना करे कि जो हमारे जो बंदे जाएं उनके नाम ECL पे डाल दे। इमरान खान की बात दुनिया में सुनी जाती है, यू यूज योर बेस्ट वेपन इन द वॉर एंड योर बेस्ट वेपन इज इमरान खान। खुदा के लिए उसको इस्तेमाल करें। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है, लेकिन हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की वजाहत, कहा पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है, इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को भी शामिल किया जाएगा। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। रवाजन और रवायतन गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं, वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं, दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमातें हैं सर, उनके अरकान पर मुश्तमिल हैं। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे। ऑलरेडी ये तजवीज़ हमने भी दे रखी है। हमारे लिए भी ओवरसीज पाकिस्तानी उतनी मोहतरम है और उनका इस हुकूमत पे एतमाद या पाकिस्तान से मोहब्बत की एक वाज़ेह अलामत ये है कि इस वक्त जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो ऑल टाइम्स हाई हैं। वो पाकिस्तान से और मौजूदा हुकूमत से मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं। सेनेट इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े, ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बलूचिस्तान में एक वकील की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो अनवारुल्लाह काकड़ को बुरा लग गया, इस पर एतराज उठा दिया। दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। स्पेशली मैं तारड़ साहब को मुतवज्जो करके कह रहा हूँ, सूबा बलूचिस्तान में 18 मई की रात को मस्तूंग बार के जनरल सेक्रेटरी थे अताउल्ला बलोच, इनको रात 1 से 2 बजे के दौरान उठाया गया है। जब कौमी यकजहती का माहौल है तो इसमें यकजहती वहाँ पे बलूचिस्तान में भी पैदा की जाए। ये खुदाई रवैया, ये खुदा नुमा शक्ल जो ये इख्तियार कर लेते हैं, इससे अगर परहेज करें, गुरेज करें तो बहुत बेहतर हो। अगर बार पॉलिटिक्स के लिए आपने सेनेट के फ्लोर को यूज करना है इररिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कामरान साहब, कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, आप चेयर को मुखातिबों के बात करें दोनों। सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पीटीआई के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूँ, मुतमईन हूँ। बतौर स्पीकर मेरा किरदार सबके सामने है। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फजा कायम हुई है। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले हकीकी हीरोज हैं। दुश्मन को बता दिया पाकिस्तान के दिफा और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कौम यकजा है। वज़ीर-ए-आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरें बेबुनियाद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। इंडिया से सीज फायर हो गया, अब आपस में बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को कब तक जेल में रखेंगे? हम आपके साथ हैं, आप भी हमें खुद से अलग ना समझें। हम आपको सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें।
तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वजीर आजम के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, बिल्कुल फेक न्यूज है, बिल्कुल गलत है। नहीं, देखो मेरे पास न कोई ऐसी खबर आई है, न हमने कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा फिलहाल ऑन द एजेंडा है। आगे कोई है इस तरह का? एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया, अब सीज फायर हो गया। मैं कहता हूँ आपस में भी कोई बेहतरी की तरफ जाए। आप इस मुल्क के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे मकबूल तरीन लीडर को आप कब तक जेल में रखोगे, किस तरीके से रखोगे, जबकि हम आपके साथ है। आप वालिदैन को जेल में रखे और बच्चों को कहे कि फंक्शंस पे आए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें। मोटरसाइकिल मैकेनिक की 2 मासूम बच्चियां खून के मर्ज में मुब्तला। इमरान बच्चियों को खून दे देकर खुद भी दिल का मरीज हो गया। हर माह खून की जरूरत पूरी करने के लिए घर का सामान तक बेच चुका। जहानिया से इमरान सलीम की रिपोर्ट। मेरे बेटियां बहुत ज्यादा बीमार हैं, डॉक्टर ने भी जवाब नहीं दिया। रोटी खाना पीना सब छोड़ देंगे, अस्पताल में ब्लड मिल जाए बस। जहानिया से मुल्हिका आबादी मर्तीपुरा के रहसी मोहम्मद इमरान शहर की एक दुकान के सामने मोटरसाइकिल मरम्मत का काम करते हैं। इनकी 2 बेटियां 13 साल अक्सा और 11 साल मिसबा थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं। मेरे बेटियां बहुत ज्यादा बीमार हैं, डॉक्टर ने भी जवाब नहीं दिया। मैं ये गुजारिश करे हाथ जोड़ के कि मेरे नाल तावन की तवंजे मरियम नवाज थी कर साहब जो जिता जिता मेरी आवाज सुनी वेंदी। इमरान अपनी बेटियों को जिंदा रखने की खातिर दर्जनों बोतलें खून देकर दिल के मरीज बन चुके हैं। ब्लड ना लगे तो बच्चे की हालत रोटी खाना पीना सब छोड़ देंगे, अस्पताल में ब्लड मिल जाए बस। इन बच्चियों की वालदा और नानी घरों में काम करके घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं। असा घर चलाऊं तो बच्चों की दवाई नहीं गिन सकते, ब्लड नहीं लगा सकते, बच्चों की करूं तो असा घर नहीं चला सकते। मासूम बच्चियां और फाका कशी में मुब्तला इनका खानदान किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख इमरान सलीम, ARY न्यूज, जहानिया। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। झूठ की फैक्ट्री भारतीय मीडिया का एक और झूठ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ही मीडिया को शर्मिंदा कर दिया। एशिया कप से भारत की दस्तबरदारी से मुतालिक चलने वाली तमाम खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने एशिया कप से मुतालिक शोशा छोड़ा। भारत इवेंट की ना मेजबानी करेगा ना ही हिस्सा बनेगा। मीडिया ने दावा किया कि BCCI ने एशिया कप ना खेलने के फैसले से ACC को भी आगाह कर दिया, लेकिन भारतीय बोर्ड ने तमाम खबरों को बेबुनियाद करार देकर अपने ही मीडिया को शट अप कॉल दे दी। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने कहा, एशिया कप की जो भी खबरें चलाई गईं वो गलत हैं। एशिया कप के मामले पर अब तक कोई बात नहीं हुई। हमें भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। भारतीय मीडिया पर झूठी खबरें BCCI के डैडी जय शाह के कहने पर चलाई जाती हैं। साबिक क्रिकेटर बासित अली की PSL ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का कामरान अकमल ने कहा, भारतीय मीडिया ने जंग में भी अपने मुल्क का मजाक बनवाया, इसे संजीदा नहीं लेना चाहिए। BCCI के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है, बिल्कुल कख नहीं पता होता। जो इंडिया में इवेंट हो मत जाओ, हम नहीं खेलेंगे। आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। मीडिया को हम एक मजाक के तौर पे ही ले जंग के टाइम भी उन्होंने जो मजाक किया था, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे थे। इस डिसीजन से इंटरनेशनली इंडिया की और इंसल्ट होगी जो पिछले 10-12 दिन से हो रही है। प्लेयर्स भी बड़े खिलाफ हो जाएंगे। जेंटलमैन गेम है, इसको किस तरफ लेके PSL 10 के आखिरी ग्रुप मैच में इस्लामाबाद और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें टॉप 2 पोजीशन के लिए मैदान में आएंगी। जीत कराची की दूसरी पोजीशन पक्की कर देगी। इस्लामाबाद को ऊपर जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीतना होगा। नंबर 3 से दूसरी पोजीशन पर जाने के लिए न सिर्फ कराची को हराना होगा, बल्कि रन रेट बेहतर करने के लिए 50 रन या 33 बॉल्स पहले हदफ पूरा करना होगा। 2 हेड मुकाबलों में इस्लामाबाद का पलड़ा भारी। 17 मैच जीते, 6 मैचेस में कराची कामयाब रहा। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजद करने की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिया में बताया गया कि इजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तकर्रुर पर गौर किया गया। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति इस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। और अब बात करेंगे कम उम्र की शादी को जुर्म करार देने का बिल सेनेट से मंजूर। बिल शरीर रहमान ने पेश किया, बिल की शेखबार मंजूरी दी गई। कम उम्र की शादी मुमानियत बिल इससे पहले कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। UFA ने बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेजने की तहरीक पेश की। सेनेट से बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेजने की तहरीक मुस्तरद। सेनेट से एंटी रेप एक्ट 2021 में मजीद तरमीम का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने बिल सेनेट में पेश किया।
पेशावर में 2 खानदानों में झगड़े में गोलियां चल गईं। खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। एक खातून जख्मी हुई। पुलिस का कहना है फरीकैन पड़ोसी हैं। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मी खातून और लाशें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल की गई। खटको पुल में 6 अफराद के कत्ल का मुकदमा थाना उरमड़ में दर्ज कर लिया गया है। 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। 14 मई को नाज़िमाबाद में स्कूल के बाहर फायरिंग से बाप का कत्ल, 9 साल बेटी के जख्मी होने का वाकया। मामला लेन देन और खानदानी रंजिश का शाखसाना निकला। नाज़िमाबाद पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। अफजल खान से मजीद जानते हैं जो DSP नाज़िमाबाद कमाल नसीम के साथ मौजूद हैं। कुछ रोज़ कबल नाज़िमाबाद में पायलट स्कूल के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें स्कूल पहुंचाने के लिए आने वाला शख्स उसकी बेटी के सामने कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस ने इस वाक़े के अंदर मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 14 तारीख का वाक़या है। सुबह 8 बजे के करीब पायलट स्कूल है नाज़िमाबाद 3 नंबर में। तो वालिद अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने आया था, तो वहाँ एक शख्स पहले से मौजूद था जिसने उनको हिट करके मौके पे हलाक हो गया था। बच्ची के सर पे गोली लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, घर पे आ गई है। ह्यूमन बेस रिसोर्स से हमने फिर जो असल मुल्जिम है उसको गिरफ्तार किया। इस वाक़े के अंदर मुलव्विस 2 मुल्जिमान नाज़िमाबाद पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट की मदद से गिरफ्तार कर लिए हैं और इनके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन मुल्जिमान से पूछगछ की जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह ख़ानदानी रंजिश का शाखसाना था, लेकिन इस केस के दिगर पहलुओं पर भी पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक शुरू कर दी है। जी। कराची के इलाके कोरंगी में डकैतों ने नौजवान को कत्ल करके मोटरसाइकिल छीन ली। मुलजिम पैदल आए और छीनी गई मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। नजीर शाह की रिपोर्ट। कराची का एक और नौजवान जराइम पेशा नासिर की बेरहम गोलियों का निशाना बन गया। मेरे भाई स्कूल जा रहा था बच्चे को भांजे को लेने के लिए छुट्टी से, वहीं पे रास्ते में जो ना उससे गाड़ी छीनने आया और वहीं पे उसके साथ वाकया हुआ। एनी शाहिद के मुताबिक 2 मुल्जिमान थे जिन्होंने मज़ाहमत पर फैसल को गोली मारी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। यहाँ पे वो लड़का गिरा हुआ था और 2 लड़के घबराहट के आलम में बाइक लेके जा रहे थे। बीच में उन्होंने एक ऑरेंज कलर का बैग रखा है, अपने पैराशूट बैग था, ऑरेंज कलर का, ऐसे के जैसे बड़ा बैग था, कोरियर वालों के जैसा बैग था वो। स्ट्रीट क्राइम की लहर से शहरी खौफजदा नजर आते हैं। शहर कायद में रवा साल डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब तक 45 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है, मगर पुलिस किसी भी मुल्जिम को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। कराची में ज़िबोखाने और पार्क्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने की करारदाद KMC कौंसिल ने मंजूर कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देकर इन पार्क्स को आबाद करना चाहते हैं। इस तरह KMC को आमदनी मिलेगी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने करारदाद की मुखालफत की। कहा पार्क को पार्क और खेल के मैदान को मैदान ही रहना चाहिए। आधा पार्क काट कर पेडल कोर्ट, फुटसॉल या कुछ और कमर्शियल सरगर्मियों से महफूज रखा जाए। सक्खर में सैकड़ों मछलियां मर गईं, हजारों मरने के करीब हैं। सरकारी फिश हैचरी में पानी की किल्लत से कई तालाब सूख गए हैं। मछलियां बचाने के लिए दूसरे तालाबों में मुंतकिल किया जा रहा है। हैचरी में मौजूद सोलर ट्यूबवेल्स को बर वक्त नहीं चलाया गया, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हुई। सलीम सहतो की ये रिपोर्ट। रोड़ी के करीब फिशरीज डिपार्टमेंट के कायम करदा फिश हचरी में रवां साल 15 तालाबों में मछली का बीज रखा गया था। नहरी पानी की कमी और बिजली की मुसलसल बंदिश और लोड शेडिंग के बायस 6 तालाब मुकम्मल सूख गए हैं, जबकि 8 से ज्यादा तालाबों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इन तालाबों में मौजूद सैकड़ों मछलियाँ मरने लगी हैं। पानी भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो काम क्या होगा सर। 16-17 करोड़ यहाँ पर मछली पैदा होती थी। अफसरान के मुताबिक मुतासरा तालाबों से 2000 के करीब मछलियों को दीगर तालाबों में मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 3 हफ्ते से बिजली का बोरान हो गया है, तालाब का पानी कम हो गया है। 1 महीने से हमारे ट्यूबवेल जो मशीनरी है वो भी काम नहीं कर रही थी। मकामी लोगों के मुताबिक फिश हचरी पर सोलर ट्यूबवेल्स और डीजल इंजन मौजूद हैं, जिन्हें वक्त पर इस्तेमाल नहीं किया गया। फिशरीज डिपार्टमेंट के अमले ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पानी की किल्लत का मामला हल न हुआ तो तालाबों में मौजूद हजारों की तादाद में मछलियां भी मर सकती हैं, जबकि लाखों की तादाद में तैयार होने वाला मछलियों का नया बीज भी मुतासिर होगा। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। और अब ARY मौसम। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। दादू, जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन मुकाम रहे, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी में 40 डिग्री रहा।
منجداڑو نواب شاہ میں 45، بنو ڈیر اسماعیل خان سکھر میں 44، پشاور 43، لاہور 41 اور کراچی میں درجہ حرارت 35، لیکن گرمی کی شدت 38 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے میدانی علاقے مزید 2 دن تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ برٹش ہائی کمیشن آفس لاہور کے سربراہ بین وارنگٹن نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے لاہور دفتر میں ڈی جی پنجاب رافع سید سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وارنگٹن نے پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ کہا برٹش ہائی کمیشن پنجاب میں نجی شعبے کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ جون 2025 کے لندن ٹیک ویک میں شرکت کرنے والی پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے لیے تعاون قابل تعریف ہے۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر عید قرباں کے جانوروں کے لیے سجائی گئی مویشی منڈی کی رونق بڑھ گئی ہے۔ بیشتر شہریوں کا کہنا ہے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے۔ ناردرن بائی پاس پر جہاں عید قرباں کے لیے مویشی منڈی سج گئی ہے، منڈی کی بات کی جائے تو منڈی میں مہنگے جانور بھی ہیں، سستے بھی ہیں۔ گائے جو ہے 4 لاکھ 5 لاکھ میں بھی ہے، سودا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بیپاریوں میں اور گاہکوں میں تکرار بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بھائی ہم 5 مانگ رہے ہیں، 5 لاکھ 280 بول دیے، 280 نہیں 280 میں بھائی اتنا بڑا جانور کون دے گا؟ اخراجات زیادہ ہیں، خوراک مہنگی ہے، یہاں پہ خرچے ہیں۔ 280 بہت ہے، اس کے مہنگائی بہت زیادہ ہے، ریٹ 1-2 لاکھ والا بندہ تو بھول جائے منڈی آنے کا، سوچے بھی نہ بھائی، وہ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وی آئی پی بلاکس میں وہ تو 1 کروڑ اور 2 کروڑ کے ہیں، جبکہ بکرا جو ہے 1,20,000 اور 75,000 میں ہے۔ ہر بیل یہاں پہ موجود ہے، لیکن دام بھی اپنے اپنے ہیں، جیسے وی آئی پی ٹینٹ ہے ویسے دام ہے، اور جو کھلے آسمان کے لیے میں جانور ہیں ان کے دام کم ہیں۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔